اب چاہے کوئی سی بھی آرزو آپ کی ہو یا پھر کتنی بھی آپ پریشانی میں موجود ہیں یا پھر آپ کی کوئی بھی امید پوری نہیں ہوتی ہے، آپ طرح طرح کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں یا جگہ جگہ جا کر کے آپ بھٹک چکے ہیں، آپ کا پیسہ بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج اس وظیفے کو سن لینا اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے جو طریقہ میں بتانے والا ہوں اسی طریقے سے آپ اس وظیفے کو کر لینا 11 دن، چاہے کوئی سی بھی آرزو ہو انشاءاللہ تعالی دیکھتے دیکھتے اور کرتے کرتے آپ کی وہ آرزو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر لا علاج مریض ہیں آپ، یعنی ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، جس کے یہاں لا علاج اسے کہتے ہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو، اگر لا علاج آپ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہو اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالی آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنے والا ہوں، اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھ لینا اور سن لینا، کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی طریقے کے وظیفے اور ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور بہت سارے لوگ مجھے فون پر بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمامی حضرات کی میں ان آرزوؤں کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں یہ وظیفہ آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر کرنے والا ہوں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل سجاد نظامی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ برابر میں بیل آئیکن یعنی گھنٹے کا آپشن ہے اس کو آن کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا دوستو، کیونکہ آپ کا ایک شیئر میرے حوصلے کو بہت بلند کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں وظیفہ کیا ہے، کون سی سورت کا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے میں وظیفہ بتانے والا ہوں سورہ فاتحہ کا، کیونکہ سورہ فاتحہ وہ مقدس نام ہے اور وہ سورت ہے کہ جس مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کرو گے طریقے سے تو اللہ رب العزت آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، اگر آپ کی کیسی بھی کوئی بھی آرزو ہو تو کیسے کر کے ہم کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے وہ سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ بہتر ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ اگر آپ کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی ہے یا آپ کا کوئی کام بگڑ جاتا ہے یا آپ کی کوئی اور پریشانی کا حل نہیں مل پاتا ہے آپ کو، تو انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز آپ پڑھ کے جب فارغ ہو جائیں اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں، دعا نہ مانگیں، یعنی نفل وتر کے بعد نفل پڑھنے کے بعد آپ دعا نہ مانگیں، دعا مانگنے سے پہلے اس وظیفے کو آپ کر لیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دے دیجئے۔ 11 مرتبہ آپ شروع میں درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، وہی انداز سے جیسے کہ آپ نمازوں کو جب شروع کرتے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی ہاں، اب ہم کو 11 بار جو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو میم ہے وہ الحمدو کے لام سے ملانا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ، مل حمدللہ ہے، مل الحم نہیں، مل حمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ، مل حمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے 11 مرتبہ بسم اللہ کی میم کو الحمدو کے لام سے انشاءاللہ تعالی ملا کر کے آپ 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کو۔ جب آپ 11 مرتبہ درود مقدس پڑھ لیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیجئے۔ کوئی بھی آپ کا XYZ یعنی A to Z کوئی بھی مقصد ہے انشاءاللہ تعالی آپ 11 دن متواتر اس عمل کو کرتے رہیں، اس وظیفے کو کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اسی کے صدقے میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، دعا مانگیں۔ اگر جائز آپ کا کوئی بھی مقصد انشاءاللہ تعالی ہوگا تو 100% نہیں 101% اس وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ نے چاہا، میرے رب کا کرم ہوگا
इंशाअल्लाह ताला आपकी वो आरजू पूरी हो जाएगी, चाहे कोई काम आपका बिगड़ता हो या फिर आपका कोई काम बनता ही ना हो। ठीक है, एक वजीफा सूरह फातिहा का ये हो गया। अब दूसरे तरीके से मैं आपके बताऊं, अगर आप लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं, जैसे कैंसर या फिर और किसी और बहुत सारी बीमारियां हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने बंदों के लिए पैदा की, तमाम ही बीमारी हैं, अगर अल्लाह ने उन बीमारियों को पैदा किया है तो उन बीमारियों को निजात, उन बीमारियों से निजात पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बड़ी प्यारी प्यारी सूरतें और आयतें नाजिल भी फरमाई हैं। तो दोस्तों, अब लाइलाज जो मरीज हैं उनके लिए, या फिर आप किसी भी तरीके से बीमार हो जाते हैं, अक्सर व बेशतर आप बीमार रहते हैं, कभी बदन दर्द है आपका, कभी सर दर्द है आपका, कभी आंखों की रोशनी में कोई मतलब जो है दिक्कत होती है, या फिर और यानी कि जिस्मानी परेशानी को लेकर के, किसी भी बीमारी को लेकर के इंशाअल्लाह ताला ये सूरह फातिहा का अभी ये तरीका इंशाअल्लाह आप मुलाज़ा फरमा लें। करना क्या है आपको, सबसे पहले फजर की नमाज के बाद, जो मेरी माँ बहनें सुनती हों वो भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से करें। फजर की नमाज के बाद मुतवातिर आप फजर की नमाज के लिए आप वक्त से उठ जाइए, वज़ू बनाइए, वज़ू बनाने के बाद नमाज पढ़ लीजिए, चाहे मस्जिद में, मेरी माँ बहनें घर के अंदर। जैसे नमाज से फारिग हो, दुआ फिर नहीं मांगना है, और दुआ मांगने से पहले इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफे को कर लें। अगर लाइलाज मरीज हैं या फिर और जिस्म के अंदर बीमारी है या किसी भी और तरीके की परेशानी है जिस्मानी मामलात को लेकर के, तो आपको करना क्या है, नमाज फजर पढ़ने के बाद जब फारिग हों, दुआ मांगने से पहले पहले आपको फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ आप सूरह फातिहा को 21 मरतबा आप पढ़ें। ठीक है, जी हाँ, 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा के बाद में जो है दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ें, और दुरूद जो है 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप दुआ के लिए हाथ उठा लें और मतलब एक गिलास में या फिर किसी और बर्तन में पानी ले लें, उसी पर दम करें इंशाअल्लाह ताला, और दुआ मांगने के बाद दम कर लें, और वही दम किया हुआ पानी आप पी लें, और जहां जहां परेशानी है वही तेल की तरह जो है उस पानी को इंशाअल्लाह ताला बदन में मल लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तरीके से आप, अगर आपने इस वजीफे को किया 21 दिन तक, तो इंशाअल्लाह ताला आपके वो भी इंशाअल्लाह परेशानी में इजाफा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस हर परेशानी से निजात अता फरमाएगा। ये हो गई सूरह फातिहा की बात। अब आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं रशीद भाई छोटा वीडियो बनाया कीजिए, लेकिन मैं सोचता हूं अगर मुकम्मल चीज या मुकम्मल इलाज अगर कुरान पाक के हवाले से अगर आपको ना मिल पाए तो फिर वीडियो चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कोई मुज़ायका नहीं, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं। चाहे वीडियो छोटी हो तब भी कोई हर्ज नहीं, वीडियो बड़ी हो तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुकम्मल हर इंसान के लिए मुकम्मल बात पहुंचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ के लिए। हालांकि बहुत सारे वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाए हैं, लेकिन आज जो है कुछ और तरीके का मामलात है। कैसी भी कोई भी आप परेशानी या आफत में मुब्तला हैं, ठीक है, या फिर आप ला वलद यानी कि आपके घर में औलाद नहीं है, उसके लिए। उसके बाद अगर आपके पेट के अंदर कोई भी बीमारी या परेशानी रहती है, उसके लिए। या फिर आपके घर पे जो है किसी ने जादू या सहारासे वगैरह करा रखा है, उसके लिए। इसके अलावा अगर आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं या दुश्मनी कोई हमले से आप परेशान हैं, उसके लिए इस सूरह बिस्मिल्लाह शरीफ को इंशाअल्लाह ताला काम में लाएं। अल्लाह ने चाहा आपके इन मकसद में कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं अब यहां से बिस्मिल्लाह शरीफ का कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार पढ़ना है, वो सुने इंशाअल्लाह ताला। अगर इन तमाम ही जो मैंने परेशानियां बताई, इन तमाम ही में से अगर कोई भी अगर आपके अंदर घर में आपकी जिस्म में परेशानी है, तो बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा 40 दिन मुतवातिर कर लेना। जो मेरी माँ बहनें हैं, काफ़ी मेरी लेडीज़ माँ बहनों ने जो है फ़ोन किया कि रशीद भाई मतलब जो है कि एमसी वगैरह या पीरियड आ जाता है, उसके लिए हम क्या करें। तो मैंने कहा वो दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से औरत के लिए माफ़ है, उस वक्त में नमाज भी माफ़ है, और इस वक्त में भी जो है अगर वजीफ़ा वो औरत कर रही है तो उसके लिए दिन भी जो है माफ़ है। ठीक है, अगर 15 दिन वजीफे को करते हुए हैं तो जो 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन जो भी निकलेंगे उसकी गिनती नहीं होगी, बल्कि ये दिन पूरे होने के बाद अगला जब स्टार्ट करें 16वें दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब मैं बताऊं आपको बिस्मिल्लाह शरीफ को आपको कैसे पढ़ना है,
सभी जानते हैं खाना खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह शरीफ से खाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत पैदा फरमा देता है। अब इसका तर्जुमा क्या है? शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। बेशक अगर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा किया तो सोने पे सुहागा। मैं आपको इसकी तारीफ और तौसीफ क्या बताऊं, क्योंकि तारीफ तौसीफ अगर मैं बताने लग गया तो शायद कि 1 आध घंटा गुजर जाएगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं, बस इतना ही बहुत है। तो आपको बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा जो है करना ऐसे है कि अगर आप किसी भी नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद या ज़ुहर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या इशा की या फिर फजर की नमाज के बाद किसी भी नमाज में आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहे 5 नमाजों में पढ़ें और बेहतर है, और अगर किसी उसमें जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको तो कम से कम 1 नमाज में इसको ज़रूर पढ़ा करें। करना क्या है? आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है सबसे पहले, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब बिस्मिल्लाह शरीफ आप शुरू करें तो 111 मरतबा आपको पढ़ना है हर नमाज के बाद में, या फिर इशा की नमाज के बाद, या फिर जिस नमाज के वक्त में आपको टाइम मिल रहा है उस वक्त में आप जो है जब बिस्मिल्लाह शरीफ यानी तस्मीह का जब वजीफा करें तो 111 मरतबा आपको बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है। बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ने के बाद में फिर जो है 3 मरतबा दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, या फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ने के बाद में अगर कोई भी इंसान ऐसा है कि दुश्मन उससे कोई परेशान हो रहा है, दुश्मन उस पर हमला कर रहे हैं, तो सरसों के दानों पर आप दम कर लीजिए, और दम करने के बाद जो बहता हुआ पानी हो उन सरसों के दानों को उस दुश्मन का तसव्वुर करके इंशाअल्लाह सरसों पे दम करके उस दुश्मन का तसव्वुर करके सरसों पे दम कर लें, और वो दम किया हुआ सरसों जो है बहते हुए पानी में डाल दें। जैसे जैसे वो सरसों पानी के साथ साथ बहती हुई जाएगी इंशाअल्लाह ताला जो दुश्मन है आपके सामने या फिर आपके घर से दूर या कितना भी करीब या कितनी भी दूर हो, इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे वो सरसों पानी के जरिए से बहती हुई जाएगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो है दुश्मन को भी इंशाअल्लाह ज़ेर कर देगा, अल्लाह ने चाहा। ठीक है जी हाँ। उसके अलावा अगर और कोई परेशानी है तो बस अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लें इसको पढ़ने के बाद, इस वजीफे को मुकम्मल करने के बाद, और पानी पे दम करें, और पानी पे दम करके इंशाअल्लाह आप 3 सांस में सर पे टोपी रख के या कपड़ा पहन के इंशाअल्लाह पी लीजिए। अल्लाह ने चाहा ये वजीफा आप करते रहेंगे, जिस मकसद के लिए करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। क्योंकि बिस्मिल्लाह शरीफ वो चीज़ है कि हर काम शुरू करने से पहले जो इंसान बिस्मिल्लाह शरीफ को नहीं पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस काम को अपने उस बंदे के उस काम को अधूरा रखता है, और जो काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा देता है। ये बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा है। और सूरह फातिहा को जो आपने सुना उसकी भी इतनी बड़ी आज़मत है कि मैं आपको बयान करूं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक जंग में सहाबी रसूल मतलब जो है हाथ कट जाता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी इस सूरह फातिहा को पानी पे दम करके और जख्म की जगह लगा लो। फौरन जैसे ही उन सहाबी रसूल ने पानी पे दम करके सूरह फातिहा को और जब पानी जख्म की जगह पर मला तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते उन सहाबी रसूल का हाथ बिल्कुल यानी कि दुरुस्त हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर एक सहाबी रसूल एक जंग करके आ रहे थे, पहाड़ से अचानक नीचे गिर जाते हैं, उनका पाँव जो है टूट जाता है। फिर सूरह फातिहा को जो है पढ़ करके पानी पे दम करके लगाया गया और दम कर दिया गया। अल्लाह के फजल करम से सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सहाबी रसूल का पाँव फौरन अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये सूरह फातिहा की बरकत और फजीलत है, और बिस्मिल्लाह शरीफ की जो बरकत और फजीलत आपने समाअत की। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि हर इंसान तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर किसी को कुछ और मालूम करना है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर इंशाअल्लाह ताला मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें सूरह फातिहा का नक्श आपको लेना है तो सूरह फातिहा का नक्श भी इंशाअल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप के जरिए से आपको दे दूंगा। मेरा नंबर नोट करें 74 77 024 102 यानी कि 74 770
24102 یہ میرا واٹسپ نمبر ہے. آپ مجھ سے انشاءاللہ واٹسپ پہ مجھ سے میسج میں مطلب جو ہے لکھ کے ڈال دیجئے کہ مجھے سورہ فاتحہ کا نقش چاہیے. انشاءاللہ آپ کے میسج کے آنے کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت ضرور کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا خیر میں آپ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.